ch11 I heta bayutikula garlsa, sneha nayati ke halata samaja rahiti, nayati jaba se it usa nayati ko suda pahain hidekada, suda ke oliva vokoi dusari drisa nahim pahanatiti, para sneha majabarati, abrama ka ordera de nayati ko isi drisa memus tayara karanada. वो नियति के पास आए और उसे समझाते हुए बोली, देखो बेटा, बीस्ट जैसा कह रहे हैं उनकी बात मान लो, वरना तकलीफ तुम्हें ही होगी। इसे पहन लो बेटा, प्लीज। Sneha USA's Rikvista Karain Laji, Kucha Pala Nayati ne Sokain ke Bada USAin Halata ke Samain Gutain Tika Kara Ham Karadi, USAin Drisa Senja ki Ora Sneha ne Use Tayarakia, Fira vo Nayati ko Apain Sathala Kara Ola Memagai, Jaham Abrama Usaka Intajara Kara Rahada, Abrama Karakola Blaka Kalara ke Suda Mem Bahuda Desina Laga Rahada. अपने पीछे किसी की प्रेजेंस को फील कर उसने मुड़कर देखा और नियति को देखकर उसकी नज़र कुछ पल के लिए उस पर ही ठहर गई। वो उसे अपनी काली आंखों से नीचे से ऊपर तक देख रहा था। Nayati ne vena kalara ka slivalesa pula lentha vala gana pahanada, jisamem usaka patala dubala sarira bahuda atrektiva laga raha, smoky ija ora leda mekapa mem nayati bahuda elegenta laga rahiti, ora apani umra se thori jayata bari laga rahi thim. पर उसके चेहरे की मासूमियत वो अभी भी वैसे ही बरकरार थी। नियति ने शर्म से अपनी पलकों को झुकाया हुआ था। उसने आज से पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने जिसमें उसका शरीर दिखे। वो बार बार अपने हाथों को आपस में मसल रही थी। उसकी ये नर्वसनेस अभ्रम से छुपी नहीं थी। तभी अभ्रम ने उसे देखते हुए मन में कहा, खूबसूरत हो। शायद इसीलिए इस काम के लिए चुनी गई हो। बट आई हेट ब्यूटीफुल गर्ल्स, क्योंकि खूबसूरती एक धोखा है और धोखा अभ्रम सिंह चौहान को पसंद नहीं। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम नियति को देखते हुए उसके पास गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लेट्स गो। नियति उसे घूर रही थी। उसने अपने होठों से एक शब्द नहीं कहा और उसके पीछे पीछे चली गई। नियति अब तक एक बात समझ गई थी, अभ्रम की बात न मानना और उससे बहस करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। Isali vo usaki sari bada manate huaba usak instraxana ko folo kara rahiti. Jaba abrama nayati ke satha bahara ayata tegara, jagara ora pathana nayati ko dekakara us dekat hai raha gai. Tartala tuma pahale se hayatani kubasarata ti para asia to tuma kamala laga rahi ho, jagara us dekat hu bola tavahim tegara nabi kuda se kaha. Tartala Asia tuma hai party mem sabaka santera afa atraxana banogi. Quote. Pathana ne deravaja kola tanayati ne ekanajara abrama ko deka, vo us hai deka rahada, usain jaldi se nazar feri ora indara betha gai, dusari tarafa se abrama bi betha gaya, pathana draving asita para betha ora danam kola kara kala gaya, tegara ora jagara danam dusari gari lakara kale gai. Kariba eka gante bada ve loga destinasana para pahamsi. Vo eka rijordada, abrama ne nayati ki tarafa deka jo abibi sira juke bethi ti ora bara bara apain balo ko sahi kara rahiti, us bahuda anakam fartabala fili ho rahada, yi dekakara abrama ne apani ank banda kara gus mem apani muti ko kasalia. फिर गहरी सांस लेकर उसने एक बॉक्स नियति को देते हुए कहा, वेट। अभ्रम पार्टी में पहुंचा तो सबकी नजरें उस पर आकर ठहर गई। सब उसे देखकर स्माइल कर रहे थे। अभ्रम की आंखों ने एक नज़र सबको देखा। वो सबको एक नज़र देखकर ही समझ गया था किसकी स्माइल रियल है और किसकी फेक। उसने भी अपने होठों पर एक फेक स्माइल सजाई और अपने लंबे लंबे कदमों को आगे बढ़ाते हुए पार्टी हॉल के सेंटर में आ गया। Usak pitch se tegara, jagavara danam nayati kolakara indara a, nayati ki narvasane saaba thori kama ho gaiti abrama ne jo boxa us dia de usamem eka denima jakata de jis nayati ne pahana lia de ora aba usak kulkan donka gaida jazes nayati kamfartabala fili kara rahiti. जैकेट पहनने के बाद भी उसकी खूबसूरती में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी उतनी खूबसूरत दिख रही थी। Abrama ke pahankate hai saba ne us karam tarifa se garalia ora usas bada karain ki kazisa karain lage. Vahim abrama sabako ignora kara vakasa malhotra se bada kara raha de vakasa malhotra ne abrama ke samain eka hatha bar hate hukaha, velikama mistara kauhana. अभ्रम ने भी एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे ग्रीट किया और फिर दोनों बात करने लगे।
प्लान के अकॉर्डिंग कुछ देर तक टाइगर और जैगुआर दोनों नियति के साथ खड़े रहे। फिर दोनों ने मौका पाकर नियति को अकेला छोड़ दिया और छुपकर उसके ऊपर नज़र रखने लगे। जब नियति ने महसूस किया कि जैगुआर और टाइगर दोनों ही उसके पीछे से गायब है तो उसने पलट कर देखा। दोनों को न देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसकी आंखों में और चेहरे पर डर दिखने लगा। उसने घबराहट में अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा, हे भगवान, ये दोनों मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। अब मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँगी? ये बोलकर उसने एक नज़र सभी को देखा। वे सारे चेहरे जो उसे दिख रहे थे वे उसके लिए अनजान थे। इतने सारे अनजान चेहरे को देखकर नियति और डर गई और तभी उसने महसूस किया कि सभी की नज़रें रह रहकर उसे ही देख रही हैं। ये देखकर उसकी घबराहट और बढ़ गई और उसने डर और घबराहट का सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारते हुए उम्मीद भरी नज़रों से अभ्रम, जैगुआर और टाइगर को ढूंढने लगी, पर तीनों ही उसे नहीं दिख रहे थे। Jagara ora tegara donam hi chupakara uste ka rehi the tavaha abrama lagam se gira wada lagam ka uskarana bi lajami da abrama se milane ki appointment alina USA's mittinga karana bahuda musculada, sabi USA ksatha bijanesa karain ki kavahi sarakatha, para abrama apana bijanesa partanara kuda kunada de jinamem kucha kabiliata hodi ti kucha karain ka jununa hoda devoes lagam ke satha hi bijanesa karatada. Isali Saba USA's Milane K Bahana Usam Preza Kara Rehi the Taki Fayukara Memve USA Ksatha Bijanesa Kara Sake. नियति को परेशान देखकर जैगुआर ने टाइगर से कहा, यार मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। नियति ऐसी लड़की नहीं है जैसा बीस्ट सोचते हैं। देखना बेचारी कितना परेशान लग रही है और घबरा भी रही है। उद्धरण चिन्ह। टाइगर ने भी नियति को देखते हुए कहा, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये इस तरह की पार्टी में पहली बार आई हो। पता नहीं बीस्ट को क्यों इस पर भरोसा नहीं हो रहा। मुझे तो ये मासूम लग रही है। उद्धरण चिन्ह। हाँ यार, ये मासूम है, हमें बीस्ट को समझाना चाहिए, वो इस पर शक करना छोड़ दे। जैगुआर की इस बात पर टाइगर ने चौंकते हुए कहा, रियली? तू बीस्ट को समझाएगा? इतनी हिम्मत है तुझ में? ये सुनकर जैगुआर ने मुंह लटका लिया। उसके लटके हुए मुंह को देखकर टाइगर को हंसी आ रही थी। उसने जैसे ही जैगुआर को कुछ कहना चाहा, तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन देखकर टाइगर ने जैगुआर से कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तू टर्टल पर नज़र रख। उद्धरण चिन्ह। जैगुआर ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया और नियति को देखने लगा। वहीं अब नियति लोगों की घूरती नज़रों से परेशान हो गई थी। उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए और धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए चलने लगी। तभी लोगों की भीड़ में उसे अभ्रम की हल्की सी झलक दिखी। उसे देखकर नियति के होठों पर स्माइल आ गई और वो उसके पास जाने लगी। Azais pahale ki vo abrama ke pasa ya patti, Usaki najara atisa kana ke pichkala rehi samartha paragai, samartha ko dekat hi nyati kusa hogai ora USA katham ne dur se kaha, samartha apa haim milagai. Quote. गाउन पकड़े नियति जल्दी जल्दी चलने लगी, पर तभी किसी से टकराकर वो एकदम से पलट गई। उसने जल्दबाजी में उस आदमी से माफ़ी मांगी और वापस से उस ओर देखने लगी, पर अब समर्थ वहाँ नहीं था। ये देखकर उसने अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाया और खुद से कहा, समर्थ आप कहाँ चले गए? अभी तो आप यहीं थे। उद्धरण चिन्ह। वो फिर से समर्थ को ढूंढने लगी, पर समर्थ उसे कहीं नहीं दिखा। तभी अचानक से अभ्रम उसकी आंखों के सामने आ गया। उसे देखकर नियति डरकर एक कदम पीछे हो गई। Ye dekakara abrama muskaraya ora mana membola, tartala tumare seher ka uraranga bada raha haiki tuma kisi ko dunda rahi ho, dindho ji sataka tumhari nazar pahan senji, vahi mera tarageta hoga. Quote. अभ्रम नियति के पास चलकर आया और उसके ऊपर हल्का सा झुकते हुए धीरे से उसके कान के पास कहा, क्या हुआ, किसी को ढूंढ रही हो? Nyati ne jaldi se na mem sira hilaya, ora pitch hogai da abrama ne use dekat hukaha, enjoya di nada. Quote. ये बोलकर वो चला गया। तभी नियति ने उसे जाते हुए देखकर खुद से कहा, मेरी तो आपने ये हालत की है, अगर आपको समर्थ के बारे में पता चला तो पता नहीं आप उसके साथ क्या करेंगे। कहीं आप उसकी जान ही ना ले ले। इसलिए मैं आपको समर्थ के बारे में कभी कुछ नहीं बताऊंगी। उद्धरण चिन्ह।
Ye bola niati ne abrama se nazar hatai orifira se samartha kodan hain laji, tabi use samartha gardana mem jata wadika, use dekakara niati fira se kusa hogai, usain idara udara de kata tegara, jagara ora abrama koi usak asa pasana himda. ये देखकर वो खुश हो गई और गार्डन की तरफ जाने लगी। फिर कुछ सोचकर वो रुक गई। उसकी नज़र एक टेबल पर गई जहाँ काले रंग की शॉल रखी थी। उसने इधर उधर देखा और टेबल के पास जाकर उसने शॉल ले ली और फिर उससे खुद को कवर करते हुए गार्डन में आकर समर्थ को ढूंढने लगी। पर समर्थ उसे कहीं नहीं दिख रहा था। गार्डन बहुत बड़ा था और वहाँ झाड़ियाँ और कुछ पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे लगे थे। नियति अभी भी खाली आंखों से समर्थ को ढूंढ रही थी कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ें गई। उसने ध्यान से उन आवाज़ों को सुना तो वो आवाज़ झाड़ियाँ के पीछे से आ रही थी। आवाज़ का पीछा करते हुए नियति झाड़ी के पीछे गई तो देखा एक लड़का एक लड़की के ऊपर झुका हुआ था और उसे किस कर रहा था। ये देखकर वो चौंक गई और जल्दी से पलटकर वहां से जाने लगी। पर तभी उस लड़की की नज़र नियति पर गई और उसने नियति को देखकर लड़के को पीछे धकेलते हुए गुस्से में कहा, हाउ डरे यो, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। उसकी बात सुनकर नियति रुक गई और उससे माफ़ी मांगने लगी। तभी उस लड़के ने लड़की के गाल पर प्यार से किस करते हुए कहा, ओ बेबी, तुम भी ना कहा इस लड़की के चक्कर में पड़ी हो। इस लड़की की वजह से तुम हमारा इतना अच्छा मोमेंट क्यों स्पॉइल कर रही हो। Volaraka nes mem bola raha de tavahim jaba usaki avajanayati ne suni tavo konkagai. समर्थ, नियति के होठों से निकला। आवाज सुनकर जैसे ही समर्थ पीछे मुड़ा तो वो भी नियति को देखकर चौंक गया। वो नशे में था पर फिर भी उसने नियति को पहचान लिया था। वो जल्दी से उसके पास आया और उसे देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम दिल्ली कब आए। उद्धरण चिन्ह। क्यों पसंद नहीं है अभ्रम को खूबसूरत लड़कियाँ। क्या होगा जब अभ्रम नियति और समर्थ को साथ में देखेगा। क्या करेगी नियति समर्थ के साथ, जानने के लिए अगले चैप्टर का इंतजार करें। चैप्टर 12 हॉट ब्रोकन नियति। समर्थ को किसी और लड़की के इतने करीब देखकर नियति को गुस्सा आ रहा था। उसे अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए भारी गले से कहा, समर्थ, आप इस लड़की के साथ क्या कर रहे थे। आप इस लड़की के इतने करीब क्यों गए। बताइए मुझे, मैं आपको दर बदर ढूंढ रही हूँ और आप इस लड़की के साथ। नियति ने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया। वहीं समर्थ उसकी बात सुनकर गुस्से में बोला, एक सेकंड बेला, तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल करने वाली। मैं किसी के भी साथ रहूं ये मेरी मर्जी है। तुम कौन होती हो मुझसे ये सब पूछने वाली। उसकी बात सुनकर नियति हैरान रह गई थी। तभी उसने रोते हुए कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं। मैं कौन होती हूँ। क्या आप भूल गए हैं कि हमारा क्या रिश्ता है और हम एक दूसरे के क्या लगते हैं। उसकी बात पर समर्थ ने हंसते हुए कहा, रिश्ता। किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम। बेला, तुम गांव में रहने वाली हो और मैंने 15 साल की उम्र में ही गांव छोड़ दिया था। मेरा एक अलग ही स्टैंडर्ड है। तुम तो मेरी स्टैंडर्ड को मैच तक नहीं करती। फिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने बाबा की बात मानकर तुमसे शादी करूंगा। उद्धरण चिन्ह। बेला उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ गए, पर उसके रोने से समर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उसने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, पागल हो गई हो क्या, जो गांव छोड़कर यहाँ चली आई। जाओ और गांव वापस लौट जाओ। मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला। मेरी जिंदगी में श्रुति है और मैं अपनी श्रुति से बहुत प्यार करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए उसने अपने बगल में खड़ी लड़की को अपनी बाहों में भर लिया। वही ये सब देखकर बेला हैरान रह गई। उसके ऊपर जैसे कोई आसमान टूट पड़ा हो। उसे इतना दर्द हो रहा था। अब वो अपने दर्द को सहन भी नहीं कर पा रही थी। तभी उसने अपने गुस्से और दर्द की मिली जुली भावना से समर्थ को देखते हुए कहा, आप शहर आकर इतना कैसे बदल सकते हैं। क्या आप हमारे बाबा का वादा भी भूल गए। आप जानते भी हैं मैं आपको ढूंढते हुए शहर तक आ गई। किन हालातों से गुजर कर मैं आप तक पहुंची हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर समर्थ ने होठों को तिरछा कर कहा, बेला, मैं 10 सालों से गांव नहीं गया, पर मुझे गांव की पूरी खबर है।
तुम उस ठरकी ठाकुर से बचकर यहाँ आई हो ना जानता हूँ मैं। Yi Sunakara Nayati Konkagai, Us Barosa Nahim Ho Rahada Ki Saba Janate Hubi Vo Usak Satha Isa Vartava Kara Rahada, Usain Rot Hu Haikaha, Apa Saba Janatha. हाँ, मैं सब जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो बूढ़ा तुम्हारे पीछे पूरी तरह पागल है और वो तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए अपने आदमियों को जरूर भेजेगा, तो बेहतर होगा तुम खुद ही वापस चली जाओ। शायद तुम्हारी सज़ा कुछ कम हो जाए। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठाकुर से दुश्मनी मोल लोगी तो अपने परिवार को खो दोगी। इसलिए मेरी बात मानो और वापस चली जाओ। और अब तुम मुझे तो भूल ही जाओ। मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूँगा, कभी नहीं। बेला, मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैं तुम्हारे जैसी लड़कियों को देखता तक नहीं, तो मेरे सपने देखना छोड़ दो और चली जाओ यहाँ से। Samartha K. Bolgai Sabda Nayati K. Dilamem Tira Jays Laga Rehi the Usain Kabi Nahim Soka de Ki Usaka Samartha Ekadina Usas Yi Saba Kahega. आज उसकी उम्मीद ही नहीं, वो खुद पूरी तरह टूट गई थी। समर्थ ने उसके सामने ही श्रुति को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर चला गया। ये देखकर नियति और टूट गई। वो अपने पैरों पर ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाई और धड़ाम से नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। वो खुद को लाचार महसूस कर रही थी। उसकी आंखों के सामने समर्थ के साथ बिताए कुछ लम्हे तैरने लगे और वो उन लम्हों को याद करने लगी। नियति को दूर जाते देखकर समर्थ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अभी न जाओ, छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। मेरे पास आओ बेला, मुझे तुम्हें अभी और देखना है। नियति मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। समर्थ ने उसके गाल पर अटखेलियां करती उसके बालों की एक लट को नियति के कान के पीछे करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। नियति की पलकें शर्म से झुक गई। समर्थ उसके चेहरे को देखते हुए उसके ऊपर झुकने लगा, तो उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर नियति ने पलकें उठाकर उसे देखा। समर्थ उसके बहुत करीब था। उसे अपने इतने करीब देखकर नियति ने उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए कहा, नहीं समर्थ, अभी नहीं। समर्थ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमारी शादी होने वाली है बेला, हमारी शादी होने वाली है, पर अभी हुई नहीं है। समर्थ, हमें समझने की कोशिश करो। हमें ये सब सही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई पाप करने जा रहे हैं। नियति की बात पर समर्थ होले से मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, पर अब उदास मत रहो। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। इस लम्हे को याद कर नियति ने रोते हुए खुद से कहा, कभी जो कहते थे इस चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती, वहीं आज आंखों में आंसू दे गए। क्या शारीरिक रिश्ता दिल के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा होता है? ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। वही जब पार्टी हॉल में अभ्रम को नियति कहीं नहीं दिखी तो उसने तुरंत टाइगर को कॉल किया। टाइगर ने उसे कॉल पर बताया कि फ़ोन आ जाने की वजह से वो पार्टी से बाहर चला गया था। फिर उसने जैगुआ से कांटेक्ट किया तो जैगुआ भी पाइथन के साथ था। ये सुनकर अभ्रम ने गुस्से में कहा, तुम दोनों इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? निकल गई ना अब वो हमारे हाथ से। अब मुझे कैसे पता चलेगा उसे मेरे पास किसने भेजा था? उद्धरण चिन्ह। अभ्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। उसी टाइम जैगुआ और टाइगर दोनों भागते हुए उसके पास आए। अभ्रम ने दोनों को घूरा और गुस्से में कहा, जब मैंने कहा था उस पर नजर रखने के लिए तो उसे अकेला क्यों छोड़ा? Usak Puchain Parabi Donam Kamosa Rehi, Unamem Atani Himata Nahim Thim Kivo Abrama Ko Safai Dasakam. अब यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ और ढूंढो उसे, मुझे टर्टल चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसके एक एक शब्द दोनों के कान में सुई की तरह चुभ रहे थे। वे दोनों ही अभ्रम की बात सुनकर चले गए। उनके जाने के बाद अभ्रम ने गुस्से में खुद से कहा, टर्टल तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी जिंदगी में तुम आई अपनी मर्जी से थी, पर तुम्हारा जाना मेरी मर्जी से होगा। जहाँ भी छुप सकती हो छुप जाओ टर्टल, मैं आ रहा हूँ। खुद से बात कर वो भी लंबे कदमों से पार्टी हॉल से चला गया। वहीं जैगुआ और टाइगर दोनों रिजॉर्ट के बाहर नियति को ढूंढ रहे थे कि तभी टाइगर ने गुस्से में जैगुआ से कहा, तुझे मैंने कहा था ना उस पर नजर रखना।
फिर तू उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? जगुआ ने उसकी तरफ देखा और झुंझलाकर बोला, अबे यार, मैंने उसे जानबूझकर अकेला नहीं छोड़ा। बीस्ट उसके साथ खड़े थे और उससे बात कर रहे थे, इसलिए मैं पाइथन के बुलाने पर चला गया। उद्धरण चिन्ह। टाइगर ने दोनों हाथ कमर पर रखा और उसे देखते हुए बोला, अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं, हमें कैसे भी करके टर्टल को ढूंढना होगा। उद्धरण चिन्ह। जगुआ ने इधर उधर देखते हुए उसकी बात पर कहा, पर वो जा कहाँ सकती है? मैंने पाइथन से पूछा तो उसने भी टर्टल को बाहर निकलते नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। जहाँ एक तरफ नियति को ढूंढते हुए वे दोनों लड़ रहे थे, तो वहीं उधर अभ्रम नियति को ढूंढते हुए गार्डन में आ गया था। उसकी काली आंखें गार्डन का मुआयना कर रही थीं। तभी उसकी नज़र गार्डन में पड़ी बेंच पर बैठी एक लड़की पर गई। लड़की ने काले रंग की शॉल ओढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से वो पहचान में नहीं आ रही थी। अभ्रम उसे देखते हुए उसके पास जा रहा था। जब वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया, तो उसके कानों में उस लड़की के सिसकने की आवाज़ गई। अभ्रम धीरे धीरे उस लड़की के पीछे से निकलकर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने जैसे ही लड़की का चेहरा देखा, तो अपनी भौहें सिकुड़कर बोला, टर्टल तुम यहाँ? नियति ने अपने झुके सिर को ऊपर उठाया और अपने सामने खड़े अभ्रम को देखकर चौंक गई। उसने जल्दी से अपनी नज़रें फेर ली और इधर उधर देखने लगी। उसे खुद से नज़रें चुराते देखकर अभ्रम के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए, और उसने अपनी कर्कश आवाज में नियति से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैंने पार्टी में रहने के लिए कहा था, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके सवाल ने नियति के शरीर में सिहरन भर दी थी। अभ्रम के सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे अभी भी चुप देखकर अभ्रम को गुस्सा आ गया और वो नियति के करीब जाकर उसे कंधे से पकड़कर बोला, जब मैं बात किया करूँ तो मेरी आंखों में देखा करो, मेरे सवालों का जवाब दिया करो, समझी तुम? लुक एट मी, अब देखो मेरी तरफ। अभ्रम के कंधे पकड़ने से नियति के कंधों में दर्द होने लगा था। उसने अपने आंसुओं को बहने से रोकने की बहुत कोशिश की, पर फिर भी उसके आंसू अपनी जगह बनाकर उसकी आंखों से बह निकले। उसने झुकी पलकें उठाकर अभ्रम की तरफ देखा तो उसकी भीगी आंखें अभ्रम की काली आंखों से जा मिली। नियति की आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं, तो वहीं अभ्रम उसे रोते देखकर हैरान रह गया था। गार्डन में ज्यादा रोशनी नहीं थी, इसलिए पहले उसे नियति की आंखों में आंसू नहीं दिखे, पर अभी उसे नियति के आंसू दिख रहे थे। उसे रोते देखकर अभ्रम के माथे पर सलवटें आ गईं, और नियति को देखते हुए उसने पूछा, हे टर्टल, तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? बताओ मुझे, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? उसके इतना पूछने पर भी नियति उसे खामोशी से देखते रही। उसकी खामोशी अभ्रम के गुस्से को बढ़ा रही थी। तभी उसने नियति के कंधों पर अपनी पकड़ को और कसते हुए कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तुम क्यों रो रही हो? जवाब दो मेरे सवालों का। उसके इस तरह पकड़ने से नियति के कंधों में अब पहले से ज्यादा दर्द हो रहा था। अभ्रम का एरोगेंस अब उससे हैंडल नहीं हो रहा था, और तभी उसने हिम्मत कर उसके हाथ को झटक दिया और उसे देखते हुए गुस्से में बोली, क्या जानना चाहते हैं आप? ये आंसू, ये दर्द, ये रोना, ये सब आपकी वजह से है। मैं सिर्फ आपकी वजह से रो रही हूँ। छोड़ क्यों नहीं देते आप मुझे? मैंने कुछ नहीं किया है। जाने क्यों नहीं देते आप मुझे? Nayati silate hu bola rahiti, Abrama pahali bara usaka isa rupa deka rahada, usi satara hakuda para silate dekakara Abrama ki ank us gus mem gura rahiti, tabi nayati uthakara jane laji, ta Abrama ne usaka hatha pakara liya, kya nayati samartha ki batamana kara ganva kali jayagi, nayati ka Abrama para silana kya us bari para jayega, kya karega aba Abrama nayati ke satha. अच्छा तेरा, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। नियति के आगे बढ़ते कदम रुक गए और वो अभ्रम से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर अभ्रम की मजबूत पकड़ के आगे नियति की हर कोशिश नाकाम रही। वो थककर अभ्रम की पीठ के सहारे खड़ी हो गई। उसका सिर अभ्रम के पीठ पर था और वो ऊपर आकाश की तरफ अपना चेहरा किए आंखें बंद कर रो रही थी।
जैसे ही नियति का बैक अभ्रम के बैक से टच हुआ तो उसके शरीर में हलचल होने लगी। ये एहसास जिसे अभ्रम अभी महसूस कर रहा था, उसने आज से पहले कभी ऐसे एहसास को महसूस नहीं किया था। उसके हाथ में अभी भी नियति का एक हाथ था। वो अभ्रम के सहारे खड़ी अपने दर्द में तड़प रही थी तो वहीं अभ्रम उसकी नज़दीकियों के एहसास से दो चार हो रहा था। आज पहली बार उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था, जिसे महसूस कर उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। वो जैसे ही मुड़ा तो नियति जो उसके सहारे ही खड़ी थी वो गिरने लगी। पर तभी उसे अभ्रम की बाहों का सहारा मिला और वो उसकी बाहों में लटकी अपनी भीगी आंखों से उसकी आंखों में देखने लगी। उसे इतना टूटा हुआ देखकर अभ्रम ने उससे कुछ नहीं कहा और झुककर उसे अपनी बाहों में उठाकर चला गया। उस पल में न जाने नियति को क्या हुआ कि उसने अपनी बाहें अभ्रम के गर्दन में लपेट दी और उसके सीने पर अपना सिर रख दिया। अभ्रम नियति को अपनी बाहों में उठाए जब बाहर आया तो दोनों को देखकर जैगुआ, टाइगर और पाइथन तीनों हैरान रह गए। पर फिर जल्दी से टाइगर ने कार का डोर ओपन किया। अभ्रम नियति को अपनी बाहों में थामे हुए ही गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही देर बाद वो सभी बीस्ट विला में थे। नियति उसकी बाहों में ही सिसकते हुए सो गई थी। अभ्रम नियति को उसके रूम में ले आया और उसे बेड पर सुलाकर उसे देखते हुए पीछे होने लगा। कौन हो तुम? क्या मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ? क्या तुम सही हो? ये बोलते हुए वो नियति को देखते हुए दरवाजे तक आया और फिर उसे एक नज़र देखकर चला गया। अभ्रम अपने रूम में बैठा ड्रिंक कर रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने नियति का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। नियति का उस पर चिल्लाना और उसके सहारे खड़े होकर रोना, ये सब याद कर अभ्रम ने एक ही बार में ड्रिंक का ग्लास पूरा खाली कर दिया। उसकी आंखें शराब के नशे से बोझल हो गई थीं। उसने काउंटर पर ग्लास रखा और उठकर अपने ब्लेजर को निकालने लगा। टर्टल, तुम रो क्यों रही थी? क्या मैंने तुम्हें इतना परेशान किया? बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ टर्टल। Aba usak sabda hinahim, usak kadam abi larakara rahida. अभ्रम अपना ब्लेजर फेंकते हुए रूम से निकला और नियति के रूम की तरफ जाने लगा। इस बीच वो खुद से ही बातें कर रहा था और बातें करते हुए ही वो नियति के रूम में आ गया। उसे सोते हुए देखकर अभ्रम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, कितने सुकून से सो रही हो तुम? और मुझे नींद नहीं आती। मैं भी तुम्हारी तरह सुकून से सोना चाहता हूँ टर्टल, पर मुझे सुकून तुम्हारे पास मिलता है। क्यों मुझे तुम्हारे पास रहकर नींद आती है? अब तुम ही मुझे सुलाओगी, मैं अब तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अभ्रम अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और फिर अपनी शर्ट निकालकर बेड पर आ गया और नियति की कमर पर अपना सिर रखकर उस पर अपनी बाहें लपेटते हुए अभ्रम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। वो नियति की कमर को पकड़े हुए ही सो गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ आज सुकून भी बिखरा हुआ था। नियति नींद में ही कसमसाई, पर ज्यादा थके होने की वजह से उसमें आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसे अपने ऊपर भारीपन को महसूस हुआ। उसने झुककर देखा तो अभ्रम का चेहरा देखकर वो दंग रह गई। वो अभी भी उसी पोजीशन में नियति को पकड़े सो रहा था। उसे खुद पर सोते देखकर नियति डरते हुए बोली, हे भगवान, अब क्या होगा? कहीं ये मुझे फिर से सजा न दे, पर इस बार तो मेरी गलती भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने खुद को डांटते हुए आगे कहा, नियति, तेरी गलती थी ही कब? ये जानवर तो तुझे बिना गलती के अब तक सजा देते आया है और आज फिर से ये तुझे सजा देगा। उद्धरण चिन्ह। अगले ही पल सजा मिलने का सोचकर नियति का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसने डर का सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारा और धीरे धीरे अभ्रम को खुद पर से हटाने की कोशिश करने लगी। पर तभी उसके हिलने डुलने की वजह से अभ्रम की आंख खुल गई और उसने अपनी धुंधली आंखों से नियति को देखा और उठकर बैठ गया। जब नियति ने उसे शर्टलेस देखा तो वो तुरंत पीछे मुड़कर बैठ गई। उसे ऐसे रिएक्ट करते देखकर अभ्रम ने खुद को देखा और गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उसने कहा, शीट। Vo beta se yutha ora apani nice parai sarda ko yutha kara pahanan laga. Usaki nazar sarda pahanate hu ikataka nyati ko hide ka rahiti.
पता नहीं मैं क्यों इसके पास आ जाता हूँ, और मुझे नींद इसके पास रहकर ही क्यों आती है। अभ्रम ने सोचते हुए अपनी शर्ट पहनी और नियति से कहा, डोंट पैनिक, मैं बस सोने आया था। ये बोलकर वो चला गया। तो वहीं उसकी बातें सुनकर नियति हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। अभ्रम नियति के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जा रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ें गई, जिसे सुनकर वो रुक गया और ध्यान से उन आवाज़ों को सुनने लगा। 2 मेल सर्वेंट जो विला की साफ सफाई कर रहे थे वे एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, सही कहते हैं, सभी खूबसूरती के सामने अच्छे अच्छों की नहीं चलती। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर दूसरे सर्वेंट ने कहा, तूने सही कहा, बीस्ट कहने को तो कितने खूंखार है, पर देखो एक खूबसूरत लड़की के आगे उनकी भी नहीं चली। जैसे ही अभ्रम के कानों में ये आवाज़ गई, उसकी मुट्ठी गुस्से में कस गई और उसने अपने कदमों को दोनों सर्वेंट की तरफ बढ़ा दिया। वे दोनों सर्वेंट अभी भी एक दूसरे से बात करने में मग्न थे। पहले सर्वेंट ने कहा, अरे मैं तो रोज देखता हूँ, बीस्ट इस लड़की के कमरे में सोते हैं या तो वो लड़की बीस्ट से कमरे में सोती है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर दूसरे सर्वेंट ने कहा, बिना किसी रिश्ते के एक जवान लड़की का बीस्ट के कमरे में सोना क्या शोभा देता है। उद्धरण चिन्ह। Fira pahala sarvanta bola, by yahi to mujhe samaj nahi mein rahayi rista kya kahalata hai. बोलते हुए वो हंसने लगा। तभी दूसरा सर्वेंट भी उसकी बात पर हंसते हुए बोला, ऐसे रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। ये समझ लो वो लड़की हमारे बीस्ट की जरूरत है। आम लोग अपनी जरूरत पूरा करने के लिए कोठी या रेड लाइट एरिया का सहारा लेते हैं, पर हमारे बीस्ट को तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। वो तो इसी विला में रहकर ही सारे सुख भोग लेते हैं। ये सुनते ही अभ्रम के कानों से धुआं निकलने लगा। उसका चेहरा गुस्से में एकदम लाल हो गया था। अचानक से दोनों सर्वेंट बात करते हुए रुक गए। उन्हें जैसे ही अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई, वे दोनों पीछे मुड़े। जैसे ही दोनों ने बीस्ट को देखा, उनकी सांसें उनके गले में ही अटक गई। उनकी आंखें बीस्ट को देखकर ऐसे फैली मानो जैसे उनके सामने मौत खड़ी हो। दोनों ही अभ्रम को देखकर डर से कांपने लगे थे। उनके हाथ में पड़ा सामान भी छूटकर नीचे गिर गया था और अगले ही पल दोनों अभ्रम के कदमों में गिरे थे और उससे माफ़ी मांग रहे थे। वहीं अभ्रम को उन पर जरा सी भी रहम नहीं आई। उनके माफ़ी मांगने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और तभी उसने दोनों को एक एक लात मारी और वे दोनों ही उससे दूर जा गिरे। अभ्रम उसी पल दोनों को सज़ा देने लगा और उन्हें मारते हुए लिविंग एरिया में आ गया। वो सोफे पर जाकर बैठ गया और उसके सामने दोनों ही सर्वेंट घुटनों के बल हाथ जोड़े बैठे उससे माफ़ी मांग रहे थे। अभ्रम के इशारे पर टाइगर और जैगुआर दोनों ही लोहे की सलाखों को गर्म करके उसके पास ले आए। अभ्रम ने उन सलाखों को लिया और उठकर दोनों के पास चला गया। उसने लोहे की गर्म सलाखों को दोनों के हाथ पर मारा और उससे उन्हें जलाने लगा। दर्द महसूस करते ही दोनों ही सर्वेंट जोर से चिल्लाए। उनकी आवाज़ विला के कोने कोने में गूंज रही थी। उनकी दर्द भरी चीख जब नियति के कानों में गई तो वो एकदम से चौंक गई। उसकी धड़कनें और उसकी सांसें दोनों ही तेज हो गई थीं। वो जल्दी से अपने रूम से भागते हुए बाहर आई और हॉल का नज़ारा देखकर दंग रह गई। वो अभ्रम की हैवानियत को, उसकी क्रूरता को अपनी आंखों से देखकर डर से कांपने लगी और उसकी सांसें जैसे उसके गले में ही अटक गई थी। अभ्रम बेरहमी से दोनों सर्वेंट को जला रहा था। उनकी चीख सुनकर और उन्हें दर्द में तड़पते देखकर नियति रोने लगी थी। वहीं अभ्रम ने दोनों सर्वेंट पर रहम न दिखाते हुए जबरदस्ती उनके मुंह को खुलवाया और सलाखों से उनकी जीभ को जला दिया। ये देखकर नियति और डर गई। वो अपनी हैरानी से बड़ी हो चुकी आंखों से अभ्रम को देखते हुए पीछे हटने लगी। इस नज़ारे को देखकर उसकी आंखों के सामने एक बार फिर उसका अतीत कौंध गया और उसे ऐसा ही एक डरावना मंजर याद आ गया। एक आदमी जिसके मुंह, हाथ, पैर, लगभग पूरे शरीर से उसे जहां जहां चोट लगी थी उसके जख्मों से खून निकल रहा था और वो दर्द में तड़पते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने सामने व्हीलचेयर पर बैठे आदमी से माफ़ी मांग रहा था। वहीं उनसे कुछ दूरी पर खड़ी एक लड़की इस नज़ारे को देखकर डर से कांप रही थी। वो बार बार नमे सिर हिलाते हुए रो रही थी। उस जख्मी आदमी ने रोते हुए व्हीलचेयर पर बैठे आदमी से कहा,
हमको माफ़ कर दो ठाकुर साहब, हमसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। पर उसकी बात का ठाकुर पर कोई असर नहीं हुआ और उसने अपने आदमियों से कहा, और कितना समय लगेगा? हम इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते और ये है कि मुंह उठाए हमारे सामने बोले जा रहा है। जल्दी लाओ, ए हरिया जल्दी ला सलाखें। हरिया जल्दी से लोहे की सलाखों को आग में तपाकर ठाकुर के पास ले गया। वहीं आग में दहकती सलाखों को देखकर उस लड़की की खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। उसने आदमी के पास जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। Para tabi villa sayara para baith thakura ne usang dikai devodara kara pichhata gai. Thakura ne salakam ko dekakara usa adami ko dekat hu haria se kaha. E haria jalada ina salakam se ise katha janeza zain hamari hon valley thakurena ko chua. Jalada asaki jubana janeza zain hamare bear mema pasab dakaham. Ora forada asaki ankhem janeza zain hamari thakurena ko dekha. Quote. ये सब सुनकर उस लड़की के होश उड़ गए। वहीं वो जख्मी आदमी इस सज़ा से बचने के लिए मौत की भीख मांगने लगा। पर ठाकुर को उस पर तरस नहीं आया। हरिया ने वैसा ही किया जैसा ठाकुर ने उसे करने के लिए कहा। अपनी आंखों के सामने इस दिल दहला देने वाले मंजर को देखकर वो लड़की जोर से चिल्लाई। क्या बदल रहे हैं अभ्रम के एहसास? क्या अभ्रम दोनों सर्वेंट की जान ले लेगा? कौन है ये ठाकुर और कौन है वो लड़की? Ch14 Kata Yahadi, Apane Atita K Una Palam Ko Yada Kara Nayati Gurna Bari Najaram Se Abrama Ko Deka Rahiti. उसकी नज़रों में ठाकुर और अभ्रम दोनों एक समान लग रहे थे। उसने बेहद नफरत से अभ्रम को देखते हुए मन में ही खुद से कहा, जानवर है ये, सच में एक जानवर है। खुद को दर्द नहीं होता तो क्या दूसरों को भी दर्द नहीं होता? कोई किसी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? कोई किसी को इतनी बुरी तरह कैसे तड़पा सकता है? क्या इन लोगों की दर्द भरी चीखें इन्हें सुनाई नहीं दे रही? क्या इन्हें दर्द में तड़पते देखकर इन्हें दर्द नहीं हो रहा? ये इतनी दरिंदगी कैसे दिखा सकते हैं? कोई फर्क नहीं है इनमें और उसमें, ये सब के सब जानवर है। उद्धरण चिन्ह। Vo mana hai mana abrama ko kosit hu vaham se kali gai. Donam sarvanta ki chikam sunakara sila ora asta bi vaham agai. जब उन्होंने अभ्रम को दोनों सर्वेंट को सजा देते देखा तो वे दोनों भी हैरान रह गई। शीला तो डर कर खामोश ही रही पर आस्था से ये सब देखा नहीं गया और तभी वो अभ्रम के पास आते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो बेटा? ये दोनों तो यही काम करते हैं, फिर आप उन्हें ऐसी सजा क्यों दे रहे हो बेटा? अभ्रम ने गर्दन घुमाकर आस्था की तरफ देखा और उसे देखते हुए ही बोला, आप जानती भी हैं आस्था आंटी, ये दोनों मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? अब जो गलती इन्होंने की है उसकी सज़ा तो इन्हें मिलकर ही रहेगी। उसकी बात सुनकर वे दोनों सर्वेंट उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोले, बीस्ट हमें माफ़ कर दो, हम आगे से कभी भी आपके और नियति के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। बीस्ट प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, ये हमारी पहली गलती है, हमें माफ़ कर दो, हम दोबारा कभी कोई बात नहीं करेंगे। आपके और नियति के बारे बीस्ट हम कभी कुछ नहीं कहेंगे। अभ्रम ने दोनों को घूरते हुए कहा, बीस्ट के विला में गलती की माफ़ी नहीं सिर्फ सज़ा होती है। तुम दोनों यहाँ के रूल अच्छे से जानते थे, उसके बाद भी तुम दोनों ने ये गलती जानबूझकर की तो अब सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम ने जैगुआ और टाइगर की तरफ देखते हुए आगे कहा, दोनों को यहाँ से ले जाओ और ब्लैकी के सामने डाल दो। ये सुनते ही दोनों सर्वेंट की आंखों में खौफ दिखने लगा। वहीं सब उसकी बातें सुनकर हैरानी से उसे देख रहे थे। टाइगर और जैगुआ को उसकी बात माननी ही थी, इसलिए दोनों चुपचाप बिना कुछ कहे सर्वेंट के पास गए और दोनों को अपने साथ ले जाने लगे। तभी आस्था ने अभ्रम के पास आते हुए कहा, किस किस का मुंह बंद करेंगे आप और किस किस को सजा देंगे आप? आज इन दोनों ने बात की, कल सभी करेंगे। अरे बात करेंगे क्या, बात करते होंगे। इनकी आवाज़ आपके कानों तक गई, पर उन आवाज़ों का क्या जो अभी भी दबी हुई है? और बातें यही होती हैं। सवाल तो उठेंगे ही बेटा, जब आप एक जवान लड़की के साथ बिना किसी रिश्ते के एक कमरे में रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अभ्रम ने तेज आवाज में कहा, आस्था आंटी मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगी और मैं चुपचाप सुनता रहूँगा।
आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं। आप मुझ पर इस तरह के इल्जाम कैसे लगा सकती है। आप तो मुझे बचपन से जानती हैं, उसके बाद भी आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। Yusaki bata sunakara asta ne yus samajat hukaha, maim samajati hum, beta para yi dunia, yi loga, vo apako nahim samajat. मैंने बचपन से आपको देखा है। आप ऐसे इंसान नहीं हो, ये मैं जानती हूँ। पर और लोग नहीं जानते और वही लोग हैं जो आप पर सवाल उठाएंगे, जो नियति पर सवाल उठाएंगे। आप तो एक आदमी हो, आपको इन सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब यही सवाल एक लड़की पर उठते हैं तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। समाज उसे ऐसी नज़र से देखता है जिसके बाद या तो वो लड़की गुमनामी की जिंदगी जीती है या खुद को खत्म कर लेती है। उद्धरण चिन्ह। आस्था की बातें अभ्रम को ट्रिगर कर रही थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और आस्था की तरफ देख अपने शब्दों को संभालते हुए कहा, जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता कि टर्टल इनोसेंट है, मैं उसे यहाँ से नहीं जाने दे सकता। वो यहीं रहेगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर आस्था ने कहा, कैद करने के और भी तरीके हैं बेटा, पर ये तरीका जो आप अपना रहे हो वो गलत है बेटा। एक जवान लड़की के साथ बिना किसी रिश्ते के एक कमरे में रहना, इस पर हर कोई सवाल उठाएगा। आपके सामने कोई कुछ नहीं कहेगा, पर सबके मन में यही सवाल होगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अगर सबके मन में यही सवाल है तो मैं इस सवाल का जवाब आज ही देता हूँ। Yi bolakara abrama ne tegara ki tarifa de kakaha, edavokita karma ko phonakara ora yus yaham bilao. Quote. टाइगर ने उसकी बात पर सिर हिलाया और कॉल करने दूसरी तरफ चला गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभ्रम क्या करने वाला है। सभी असमंजस में उसे देख रहे थे, पर अभ्रम को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उठा और बिना कुछ कहे अपने रूम की तरफ चला गया। उसने अपने कमरे में आकर खुद से कहा, लोगों को लगेगा कि मैं उनके सवालों से डर कर ये कर रहा हूँ, पर इसके पीछे की असली वजह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। आज या तो तुम्हारा सच मेरे सामने आएगा टर्टल, या तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी कैदी बनकर इस विला में ही रह जाओगी। देखते हैं टर्टल तुम और कितना सहन कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। वहीं नियति अपने कमरे में बेड पर बैठी रो रही थी। उसके सामने वही डरावना मंजर चल रहा था। अभ्रम को उन्हें सजा देते देखकर नियति के सामने उसके अतीत की फिर से कुछ धुंधली याद आ गई थी। अपने अतीत को याद कर उसे अभ्रम से और नफरत होने लगी थी। अभ्रम और अपने अतीत में मौजूद शैतान में उसे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। जहाँ एक तरफ ये सब हो रहा था तो वहीं शीला विला के पिछले हिस्से में खड़ी किसी से कॉल पर बात कर रही थी। शीला ने कॉल पर आज की सारी घटना बताई। Yusaki bata sunakara phona ke duser tarifa se eka vajai. Yi tamasa jaldi hai kadma ho jaga ora vo laraki bi vila se bahara nakala di jagi. Tuma basa yusa para nazara raki rahana. ये सुनकर शीला ने हंसते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं मेम साहब। कहाँ बीस्ट और कहाँ वो लड़की, कुछ नहीं हो सकता उसका। वो तो बस एक चींटी है, चींटी जिसे बीस्ट कभी भी अपने पैरों तले कुचल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर कॉल के दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आने लगी। करीब आधे घंटे बाद एडवोकेट कर्मा की कार बीस्ट विला के सामने आकर रुकी। टाइगर बाहर ही खड़ा उसका वेट कर रहा था। जैसे ही एडवोकेट कर्मा कार से बाहर आया, उसने टाइगर को देखते ही पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? बीस्ट ने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? उद्धरण चिन्ह। टाइगर ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता यार, वो तो बीस्ट ही जानते हैं। चल वो तेरा इंतजार कर रहे हैं। ये बोल वो कर्मा को अपने साथ ले जाने लगा। तभी कर्मा ने उसके साथ चलते हुए कहा, मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मेरी सांसें मेरे गले में अटक जाती है। पता नहीं तुम लोग कैसे बीस्ट के साथ रह लेते हो, मैं तो एक दिन भी नहीं रह सकता। उद्धरण चिन्ह। Tegara ne Yusaki bata para yus tarachi najaram se dekat hukaha, maim pre karunga. Eka dina yi maka tuja bi mile. Quote. Ti suna karma yus garain laga. Eka bara fira sabi ola memikathu. Abrama sof para jangala ke raja ki taraha bathada. Ora nayati usak samain muharima ki taraha kariti. Abrama ki najaram jo usi para thim. Usain akataka nayati ko garat hukaha.
Tartala tumare la eka afera hai. औफा की बात सुनकर नियति उसे गहरी नजरों से देखने लगी। वही अभ्रम के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। Vo Nayati ko dekat hubola, tuma yaham se jana kahati ho tamame tumhem azada karadumga, bina kisi pani samenta ke, bina kisi torkara ke, tuma yaham se yasakati ho, basa jane se pahale mujhe usaka namakahi, jazane tumhem yaham beja hai. नियति ने बेबसी से उसे देखा और उसे देखते हुए मन में बोली, ये जानवर तो हमारे गांव के भोला के बैल से भी ज्यादा जिद्दी है। बार बार एक ही बात पूछने से मैं कुछ नया तो नहीं बोल दूंगी। अरे जब मुझे किसी ने भेजा ही नहीं तो मैं किसका नाम लूं? क्या ये जानवर पागल हो गया है? इसी इतनी सी बात समझ नहीं आती। इसकी घड़ी की सुई क्यों एक ही जगह पर अटक गई है? अरे कोई इसे धक्का देकर आगे बढ़ाओ या इन्हें पागल खाने में छोड़ आओ। कम से कम इनका पागलपन तो ठीक होगा। Vo abrama ko mana mem kosati ya rahiti, vahim us kamosa dekakara abrama ne kaha, abi mary bada puri nahim we hayam, kahale mary puri bada suno, tumhem sokain ka tema dia jaga, urama se sokati rahana, quote. उसकी बात सुनकर नियति अपने ख्यालों से बाहर आई और अपनी गोल गोल आंखों से उसे देखने लगी। अभ्रम अपनी जगह से उठा और उसके पास जाते हुए बोला, टर्टल तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मुझे उस शख्स का नाम बता दो या फिर अपनी आज़ादी को मेरी गुलाम बना दो। उद्धरण चिन्ह। नियति उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। ये पागल जानवर कहना क्या चाहते हैं? क्या ये मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है? वो अभ्रम देखते हुए मन में बोली। उसके चेहरे के उड़े रंग को देखकर अभ्रम होठों को तिरछा कर मुस्कुराया और उसके माथे पर एक उंगली रख उसे पीछे की तरफ पुश करते हुए कहा, आज शाम तक का टाइम है तुम्हारे पास। तुम्हारा जो भी डिसीजन हो मुझे बता देना टर्टल। कैद या आज़ादी, चॉइस इज योर्स। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने एडवोकेट कर्मा की तरफ देखा तो वो उसका इशारा समझते हुए जल्दी से उसके पास आया और उसके हाथ में कुछ पेपर्स पकड़ा दिया। अभ्रम ने उस पेपर्स को नियति के हाथ में देते हुए कहा, मैं तुम्हें कानूनी अपना गुलाम बनाऊंगा ताकि कभी कोई मेरे गुलाम को मुझसे छीनने की कोशिश ना करे। तुम अपनी मर्जी से इन पेपर्स पर साइन करके अपने आप को मुझे सौंप दोगी। उद्धरण चिन्ह। जैसे जैसे नियति उसकी बात सुनती जा रही थी उसके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। उसके बदलते भाव को देखकर अभ्रम अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। तभी उसने नियति को देखते हुए मन में कहा, देखता हूँ अब तुम कैसे नहीं टूटती। मैं जानता हूँ तुम कभी मेरी कैद को नहीं चुनोगी और मेरी शर्तों के सामने झुककर मुझे उसका नाम बताओगी जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है। बस एक बार मुझे उसका पता चल जाए, उसकी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। मैं उसे इतना तड़पाऊंगा उसकी मौत को भी उस पर रहम आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। Nayati ko eka kolda luka de kara abrama palata kara jane laga, vo kucha kadama kala haida ki, tabi ruka karabina nayati ki tarafadika bola, tumare pasa surfa asia samataka ka tema hai, akse sokalina keda ya azadi। ये बोलकर वो चला गया। उसके जाने के बाद सबकी नजरें अब नियति पर थी। नियति भी बेबस नजरों से सबको देख रही थी, जैसे उनसे मदद मांग रही हो कि प्लीज इस जानवर की कैद से मुझे कोई तो आज़ाद करवाओ। शीला किसे विला की सारी बातें बताती हैं। क्या चुनेगी नियति, कैद या आज़ादी? अभ्रम क्यों बनाना चाहता है नियति को अपना गुलाम? 15 हैप्पी डेथ डे। वे सभी नियति की हालत समझ रहे थे पर वे मजबूर थे। अभ्रम के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। टाइगर और जैगुआ दोनों ने ही उसे एक नज़र देखकर अपना सिर झुका लिया। वहीं कर्मा नियति को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था यहाँ हो क्या रहा है। क्या बीस्ट इस लड़की को कैद करके रखना चाहते हैं? उसके मन में ये सवाल आया और उसने जवाब की उम्मीद से टाइगर और जैगुआ की तरफ देखा तो वे दोनों उसे देखकर बिना कुछ बोले चले गए। कर्मा दोनों के पीछे जाते हुए बोला, अरे मुझे बताओ तो सही यहाँ हो क्या रहा है। नियति ने एक नज़र अपने हाथ में पड़े पेपर को देखा और उसे लेकर धीमे कदमों से अपने कमरे में आ गई। वो बेसुध होकर बेड पर बैठी और रोते हुए बोली, मुझे अगर एक खून माफ हो तो मैं सबसे पहले इस जानवर का खून कर दूं। नहीं, एक नहीं,
मुझे 2 खून माफ हो तो मैं उसका और इसका दोनों जानवर का अंत कर दूं। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो पेपर को देखते हुए रोए जा रही थी। वही अभ्रम नियति को ऑफर देने के बाद अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने के लिए विला से निकल गया। जैसे ही उसकी कार विला से बाहर गई, एक आदमी पेड़ के पीछे से निकलकर बाहर आया और उसने अपने फ़ोन से किसी को कॉल किया और उससे कॉल पर कहा, बीस्ट अभी अभी अपने विला से निकला है, तुम रेडी रहना, किसी भी टाइम वो वहां पहुंच जाएगा। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा तो उस आदमी ने ओके बोलकर कॉल कट कर दिया और शैतानी मुस्कुराहट अपने होठों पर लिए बीस्ट की कार को वहां से जाते हुए देखने लगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक कॉम्प्लेक्स बन रहा था। सैकड़ों मजदूर वहां काम कर रहे थे और 50 से भी ज्यादा आर्किटेक्ट उस कॉम्प्लेक्स के डिजाइन पर काम कर रहे थे। Arkitekta ki timaka jo hata devo Abrama kota zana dikat hu kucha samaja rahada. Abrama ne usaki bata sunate hu apani ankam para karha seta hataya ora aka nazara nax mem dekat hu samain bana rahi building a kodeka. Fira usa arkitekta ki tarifa deka Abrama bola, ye pointa mujhe building a k andara kala kara exaplina karo. Quote. आर्किटेक्ट ने हमें सिर हिलाया और उसके साथ जाने लगा। कुछ देर में ही वो दोनों बिल्डिंग के अंदर उसी जगह थे जिसके बारे में आर्किटेक्ट उसे समझा रहा था। कुछ देर तक दोनों वहीं खड़े होकर डिज़ाइन डिस्कस करते रहे। तभी बीच में ही उन्हें डिस्टर्ब करते हुए अभ्रम का फ़ोन रिंग हुआ। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकालकर देखा तो डिस्प्ले पर प्राइवेट नंबर शो हो रहा था। ये देखकर उसकी भौहें तन गई। वो कॉल रिसीव करते हुए आगे बढ़ा और फ़ोन कान पर लगाते हुए सामने देखने लगा। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। अभ्रम को समझने में देर नहीं लगी कि ये फ़ोन उसके किसी दुश्मन का है। Vo isa hansi ko sunakara kucha kahata ki USA's pahale hai kolakata hogai. USA'n phona kana para se hataya ora display ko dekane laga. Tabi USA'k dekat hai dekat display para aka maze ka notificasana aya. उसने क्लिक किया और मैसेज पढ़ने लगा। हैप्पी डेथ डे बीस्ट। Maze par hate hai Abrama ki bon sakura gai. USA'n arkitekta ki tarifa deka commanding a tona mem kaha, leave this place immediately. Go. Sabi Varkarsa ko Bahara Nicolo, Hari Abba. USA'k ordera ko folo karate huvo arkitekta turanta Sabi Varkarsa ko building a se Bahara Nicolain laga. Kisi ko kucha samaja nahim e raha da saba afera taferi mem basa bage ya rahida. Abrama b teji se surhiom se uterate hu nice raha da tabi usaka diana aka wrote hu baks ne apani ora kinkalia. USA navaja ki disa mem dekat avaham aka penka sala ka chota baka kara ro rahada. Sayada vo kisi majadara ka hai bakada. उस बच्चों को देखकर अभ्रम की आंखें सिकुड़ गई। वहीं जब उसकी नज़र बच्चे के हाथ पर गई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उस बच्चे के हाथ में कुछ था जो उसके हाथ से बंधा हुआ था। अभ्रम तेजी से बच्चे के पास गया और उसके हाथ में रखे बॉक्स को उठाने लगा, पर वो बॉक्स बच्चे के हाथ में चिपका हुआ था, जिसकी वजह से वो बॉक्स को बच्चे के हाथ से अलग नहीं कर पा रहा था। अभ्रम घुटने के बल बच्चे के सामने बैठ गया और बॉक्स से कान सटाकर देखा तो उसके शक के मुताबिक बॉक्स में से टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ सुनते ही अभ्रम की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसने कहा, ये तो टाइम बॉम्ब है। तभी उसका ध्यान बच्चे ने अपनी ओर खींच लिया। उसे रोते देखकर अभ्रम को कुछ याद आया और उसने जल्दी से बच्चे के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। बच्चे को चुप करवाकर वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगा जिसकी मदद से वो बच्चे के हाथ से बॉक्स को अलग कर सके, पर उसे कुछ नहीं मिला। उसने 1-2 बार खुद ही कोशिश की, तभी बॉक्स ओपन हो गया और उसमें रखा बॉम्ब निकलकर बाहर गिर गया। जैसे अभ्रम की नज़र बॉम्ब पर गई उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने कहा, ओह नो, ओनली 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। उसने जल्दी से बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने सीने में छुपाते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। Vo baks ko lakara teji se baga ora building a se chalanga laga di. Vo baks ko lakara nice jira ora turanta hi yutha kara bagan laga.
USA Cordera ko folo karate hu sabi arquitecto ora pahara de rehi gardsane sabi varkarsa ko pahale high building a se bahara nakala diada, Abrama abi bax ko lakara kucha dura baga hai de ki tabi tiha damaka wa ora puri building a reda ke tile ki taraha daha gai. अभ्रम ने अभी भी उस बच्चे को अपने सीने में छुपा रखा था और तेजी से वो भाग रहा था। तभी एक पत्थर उड़ता हुआ आया और अभ्रम के सिर के पीछे जा लगा। वो पत्थर साइज में बड़ा और नुकीला था। पत्थर के लगते ही अभ्रम के कदम लड़खड़ा गए और वो गिरने लगा, पर उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और बच्चे को उसकी मां के पास ले गया। Jays hi bax ki mam ne Abrama ki go to say bax ko lia, Abrama usi pala bahosa hokara nice jiragaya, ye dekakara sabi gardsa usik pasa gai, ora us uthane lage. धमाके की आवाज सुनकर पाइथन भी भागते हुए उस जगह आया। अभ्रम को बेहोश देखकर पाइथन ने गार्ड्स की मदद से उसे गाड़ी में रखवाया और ड्राइविंग करते हुए टाइगर को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही पाइथन ने कॉल पर कहा, सर बीस्ट एक हादसे का शिकार हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह Ye sunate hi du sari tarifa se tegara ne gabarate hukaha, 2k ham hi beast athika tahayam na unhem jayata kota tanahimai, pathana gabarate hu kola parabola, Sarah beasta bahosa hayam, maim unhem lakara hospitala ya raha hum, apa baj, quote. नहीं, पाइथन हॉस्पिटल नहीं, तू उन्हें लेकर बीस्ट विला आ, मैं तब तक यहाँ सब अरेंजमेंट करता हूँ। टाइगर की बात पर पाइथन ने ओके सर कहा और कॉल कट कर दिया। वही अभ्रम को हल्का सा होश आया और उसकी आंखों के सामने उसी बच्चे का चेहरा आ गया। बच्चे का रोता हुआ चेहरा उसे उसके अतीत में ले गया और उसकी आंखें एक बार फिर धीरे धीरे बंद हो गई। एक कमरा जहां बहुत अंधेरा था, उसमें एक बच्चा खड़ा रो रहा था और बार बार किसी को पुकार रहा था, पर उसकी आवाज़ शायद उस कमरे से बाहर नहीं जा पा रही थी। इसलिए वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से बार बार दरवाजे को पीट रहा था। रोते हुए बच्चे का चेहरा लाल हो गया था और उसे हिचकी आने लगी थी, पर कोई भी उस बच्चे को कमरे से बाहर नहीं निकाल रहा था। Jaba pathana beasta kola kara vila pahamsie, tabataka tegara ne ser intajama kara ditha, jagara ora tegara donam hi Abrama ko usak ruma mem lagai, vaham doktara narsa saba pahale se hi tayara the. बीस्ट घायल है ये जानकर सभी सर्वेंट हैरान रह गए थे, क्योंकि ये बात सभी जानते थे। अभ्रम को चोट कोई नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई उसे चोट पहुंचा सकता है तो वो इंसान वो खुद हैं। बाहर हो रही हलचल जब नियति के कानों में गई, तो वो भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आई। सर्वेंट की लंबी कतार अभ्रम के रूम के बाहर लगी देखकर नियति भी उसके रूम के पास जाने लगी। बाकी सबकी तरह वो भी वहीं खड़ी हो गई और कमरे के अंदर देखने की कोशिश करते हुए खुद से ही मन में बोली, इस जानवर को हुआ क्या है? क्यों सब उसकी आव भगत में लगे हैं? क्या ये जानवर घायल है या मरने वाला है? ये सोचने के अगले पल ही नियति ने मन में ही खुद को डांटते हुए कहा, क्या नियति तू भी इस जानवर के साथ रहकर उसकी जैसी बातें कर रही हैं? माँ ने क्या सिखाया था? किसी दुश्मन के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, और यहाँ तू उसके मरने की कामना कर रही है। ये गलत है नियति, तू ऐसी तो नहीं थी। उद्धरण चिन्ह अभी वो खुद से बात कर ही रही थी कि तभी टाइगर रूम से बाहर आया और जैगुआ से बोला, वी नीड ब्लड। बीस्ट का खून बहुत बह गया है, तू फिक्र मत कर, मैं ब्लड अभी अरेंज करता हूँ। ये बोल जैगुआ चला गया। नियति दोनों को खाली आंखों से देखती रह गई। उसने छत की तरफ देखा और मन में प्रार्थना करते हुए भगवान से बोली, है भगवान प्लीज इस जानवर को बचा लेना। माना कि ये जानवर थोड़ा क्रूर है, पर आस्था माँ का लाडला है। प्लीज भगवान जी इस जानवर को बचा लेना, आस्था माँ की खातिर। अंदर अभ्रम का ट्रीटमेंट हो रहा था और बाहर सभी खड़े डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। अब तक आस्था और शीला वे दोनों भी वहां आ गई थीं। उनके पूछने पर टाइगर ने उन्हें अभ्रम के साथ जो हुआ वो बता दिया था। आस्था मन ही मन अभ्रम के लिए प्रार्थना करने लगी। वहीं शीला पूरी बात सुनकर विला के पीछे वाले हिस्से में चली गई। वहां जाकर उसने किसी को कॉल किया और उसे सब बता दिया। वहीं दूसरी तरफ से किसी ने कहा, मुझे आने में 2 दिन लग जाएंगे, तब तक तुम मुझे बताती रहना वहाँ क्या हो रहा है।
शीला ने ओके मेम साहब कहा और कॉल कट कर दिया। जगुआ भी ब्लड लेकर आ गया था। जब आधे घंटे बाद डॉक्टर अभरम के रूम से बाहर आए तो उन्होंने टाइगर से कहा, चोट बहुत गहरी है, खून भी बहुत बह गया है, होश आने में थोड़ा समय लगेगा। Ye belate u Dr. Abrama ke bear mem Tegera ko kucha baden lage. Tegera ne unaki bada parasira halate u kaha, fika hai, may manaka Diana Rakamga. Usain Pathana ki tarifa dekata Pathana Doctara ke satha unhem bahara chirain kalagaya. जगुआ टाइगर के पास आते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट किसने किया होगा। टाइगर उसे देखते हुए बोला, और कौन कर सकता है? अतीश खन्ना, एक वही तो बीस्ट का सबसे बड़ा एनिमी है। जगुआ नामे सिर हिलाते हुए बोला, नो, मैंने पता किया है, अतीश खन्ना अभी शहर में नहीं है। टाइगर उसे समझाते हुए बोला, नहीं जगुआ, ये काम अतीश खन्ना का ही है। मेरी गट्स फीलिंग कह रही है ये अतीश खन्ना ने ही किया है। वो शहर में नहीं है तो क्या हुआ, पर उसके लोग जो उसके लिए काम करते हैं वो तो है ना। ये काम उसने अपने लोगों से ही करवाया है, और होना हो उसके लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद थे। उसकी बात सुनकर जगुआ सोचते हुए बोला, कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा उसके आदमी वकर बनकर वहां काम कर रहे थे? हाँ, यही हुआ है, वरना बाहर का कोई भी आदमी कंस्ट्रक्शन साइट पर इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकता। चौहान फैक्ट्री, चौहान कंपनी या चौहान ग्रुप के किसी भी ब्रांच में कोई इतनी आसानी से घुस ही नहीं सकता। ये हादसा जो आज हुआ है, उसकी प्लानिंग महीनों से हो रही थी। आई एम वेरी श्योर, टाइगर ने सोचते हुए कहा और फिर जगुआ की तरफ देख बोला, तू तो बीस्ट का बॉडीगार्ड है, फिर तू आज बीस्ट के साथ क्यों नहीं गया? कहाँ था तू आज? उद्धरण चिन्ह। इस बात पर जगुआ ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए उसे देखकर कहा, तू मुझ पर शक कर रहा है, तुझे पता है ना बीस्ट मेरे लिए क्या है? टाइगर ने उसे देखते हुए कहा, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, तू उनके साथ क्यों नहीं गया? कहाँ था तू? जगुआ ने उसे देखते हुए आराम से कहा, मैं बीस्ट के साथ जा रहा था पर बीस्ट ने कहा वो अकेले जाएंगे, इसलिए मैं उनके मना करने पर रुक गया। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर टाइगर ने सोचते हुए कहा, अब जो होना था वो तो हो गया, हमें इस हादसे की जांच पड़ताल करके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। बीस्ट होश में आते ही हमसे सारी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। जगुआ ने उसकी बात पर सिर हिला दिया और जाने लगा, तभी टाइगर ने उसे रोकते हुए कहा, बीस्ट के एक्सीडेंट के बारे में उन्हें कुछ मत बताना। उसने फिर से हाँ में सिर हिलाया और चला गया। वहीं टाइगर अभरम के कमरे में चला गया। वो अभी भी बेहोश था और बेड पर औंधे मुंह लेटा था। उसकी इंजरी सिर के पीछे थी जिसकी वजह से उसे डॉक्टर ने ऐसे लिटाया था। शीला विला की इन्फॉर्मेशन किसे दे रही हैं? किसने किया बीस्ट पर हमला? क्या नियति पेपर्स पर साइन कर देगी? क्या छुपा है अभरम के अतीत में?